रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए थिंक जी। Miss Insha, daughter of Mr. Gulzar, 16 years of age, student of ninth class, blood group B positive, resident of Hyderabad, 3 hour distance from the Index Hospital, unmarried, last menstrual period being date on 30th November 2021. She presented 8 days back in the outdoor of the Jinnah Hospital with presenting complaint of the pain lower abdomen from the last 1 year, mass abdomen on ultrasound scan 10 months back, and history of the wound infection after a laparotomy that was done 1.5 months ago due to some pelvic pathology. My patient dates back her history 1 year back when she started experiencing lower abdominal pain more towards the left side, which was moderate to severe in intensity, gradually progressed, sudden in onset, sharp aching in nature, not radiating to the back or the thighs, no aggravating relieving factor, no association with the time. For this pain, she seek consultation from the local nearby clinic and multiple times, and she was advised with the oral analgesics, but she never received any injectable analgesic for the relief of this pain. Pain used to get increased in intensity during the menses days. However, she denied history of the menstrual irregularity, heavy menstrual bleeding, amenorrheic spells, and intake of any hormonal medication. No history of feeling of the mass or lump in the abdomen, no perineal heaviness, constipation, abdominal bloating, anorexia, dyspepsia, dyspnea, right hypochondric pain, parectal bleeding, hematuria, varicose veins, and leg edema. No history of any voice change or hirsutism, no history of weight loss, anorexia, feeling of the lump anywhere in the body as well. No personal history of the fever, hemoptysis, and cough, but contact with the tuberculosis is positive, as her father and her elder sister are treated cases of the chest tuberculosis in the last 2 years. No personal or family history of breast cancer, endometrial cancer, colorectal cancer, or ovarian cancer. With this complaint of the pain abdomen, she seek consultation, and on ultrasound scan, mass abdomen was diagnosed about 10 months back. Laparotomy was planned and definitive treatment was suggested to my patient. But the exact nature of the mass and the pelvic pathology was not known to her and her guardians as well. She underwent laparotomy about 1.5 months back from Hafzabad. According to her, low transfer CN was given, and her guardians, after the laparotomy, were consulted that it was a difficult laparotomy. Only acidic fluid aspiration was done, and further proceeding in to the procedure intraoperatively was abundant, and no biopsy was even taken. She was just closed, and drain was placed. She was referred to the tertiary care hospital for further workup and management. Unfortunately, on the fifth post-op day of the laparotomy, she noticed discharge from the wound, no history of the fever, lower urinary tract infection. Since then, daily dressings are carried out and drain was removed. Uh, antibiotic cover was given in the injectable forms. Um, According to the patient, some blood investigations, which were expensive, was done during her stay in the hospital. CT scan abdomen pelvis was also done. Further plan of the management is not yet discussed with my patient and attendants. However, according to my discussion with her, they want definitive treatment of this problem. She's unmarried and age of menarche is 13 years. Cycle is regular. No dysmenorrhea, no intermenstrual bleeding, no significant medical history, but a surgical history is positive about 1.5 months back. As I've already discussed, she's having a history of laparotomy from Hafzabad and no significant drug history. She's non-smoker and father is laborer. On examination, a young girl sitting comfortably, well oriented in time and person, answering my questions cooperatively. Her BMI is 24 kilogram per meter square. Blood pressure is 120 by 80 millimeter of mercury. Pulse 72 beats per minute. Temperature 37 centigrade. Respiratory rate 18 per minute. No jaundice, anemia, chylonychia, clubbing, and the thyroid gland was not enlarged. However, there is no sacral edema and pedal edema. Both breasts were normal looking with no lymph nodes, with no lump palpable in all four quadrants of the both breast. And she has a normal vesicular breathing um, with no added sound. Her first and second heart sounds were audible in the fourth intercostal space with no added sound. And on abdominal examination, abdomen was not protuberant, umbilicus centrally located, normal shape, abdomen moving normally with respiration,
unhealthy scar wound was seen after removal of the dressing, which was a phalansteal scar. And on palpation, no tenderness appreciated on the superficial palpation and deep palpation. No viscera was palpable, no mass was palpable. And on percussion, the note was dull all over the abdomen. Bimanual examination and perspective examination was not done because she was unmarried. अच्छा, ठीक है आयशा। चलो पहले हिस्ट्री एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इस हिस्ट्री एग्जामिनेशन में। सो मेनी थिंग्स। जी मैम। अव्वल तो एग्जामिनेशन बिल्कुल कंप्लीट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। तो वो कुछ ऐसा मज़ा ही नहीं आया। यू जस्ट कैन नॉट लीव बाय सेइंग दैट द अनहेल्दी वुंड सीन। व्हाट डू यू मीन बाय अनहेल्दी वुंड? मतलब आपने तो ऐसे डिस्क्राइब करना है कि हमें ऐसे लगे हम पेशेंट देख रहे हैं, राइट? मैडम, मैं बात कर लूं मैडम? हाँ हाँ। मैडम, पेशेंट वाज एडमिटेड, डिस्क्राइब द स्कार, अनहेल्दी स्कार। इन्फेक्टेड वूंड था मैडम, और स्टिचेस रिमूव हुए हुए थे, और डेली डिस्क्राइब द वे यू विल आंसर दिस क्वेश्चन इन एग्जाम। आपने वुंड देखा है और एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं डिस्क्राइब द अनहेल्दी वुंड। madam, it was financial scene, and it was infected in such a way that the serious discharge was coming out from the left side of the wound. अच्छा, देखो आप जब भी वुंड को डिस्क्राइब करोगे ना, आप करते भी हो, हम जब देख रहे होते हैं क्लिनिकली, हम सबसे पहले ऑब्वियसली चलो फेरेंस्टील आपने कहा है लोअर ट्रांसवर्स, बिकॉज फेरेंस्टील की भी बड़ी पर्टिकुलर डेफिनेशन है। मोस्टली इट्स लोअर ट्रांसवर्स इंसिजन एक्चुअली। Then if it's lower transverse, it's how much long, where is it exactly? It's at the itne centimeters from the pubic symphysis or so. And then you have to describe exactly whether the base and the underlying tissue was yellow colored or was it healthy, was it bleed to touch. If it was bleed to touch and it was not yellow, then it means it's a healing wound. If it was all yellow and a serous fluid was coming out, then you have to talk. You cannot say it was infective. What do you mean by infective? हम क्या कहते हैं? It was malignant looking? No, we can never use this term. हम वो features describe करते हैं which explain that the wound is infective, or any scar or any lesion or any ulcer is malignant or benign. We never say that it's benign looking, there is a benign looking mass. We never say it that way. We always say that it's a smooth surface, it's not bleed to touch, etc. जो कि एक benign की क्वालिटीज होती हैं। अब अगर आप एक अनहेल्दी स्कार कह के बात खत्म कर दोगे तो कौन पास करेगा? सीधी सी बात है। मतलब यू हैव टू टेल व्हाट डू यू मीन बाय, या तो आप कहो कि नॉर्मल लुकिंग या हेल्दी या हील्ड स्कार सीन, चलो वो तो डिस्क्राइब कर है। बट इवन कि अगर आपने कीलॉइड भी बोलना है तो आप बोलोगे कीलॉइड नजर आ रहा है तो भी हम कीलॉइड फॉर्मेशन बोलते हैं। अनहेल्दी की टर्म बोल के चुप कर जाओगे तो सॉरी, बट नो वन कैन एवर पास यू इन FCPS Part 2 एग्जाम विद दिस टर्म। MBBS फाइनल ईयर में भी हम ये टर्म यूज नहीं करते थे, उसमें भी हम डिस्क्राइब करते थे पूरे चीज को जो हम बोल रहे हैं कि उसके बेस कैसी है, उसकी मार्जिन की ऊज अभी भी वो वेट है। आपने ड्रेसिंग हटाई है, इनिशियली ड्रेसिंग वाज देयर, ओके, देन पेशेंट के वक्त व्हेन यू रिमूव द ड्रेसिंग एंड यू सॉ द स्कार, देन हाउ एग्जैक्टली इट लुक लाइक? इट वाज full of pus or a serious ooze was coming out of it? Was the whole of the scar opened up, or just 2 centimeter of it was opened up, or was the whole of the scar was opened up but the 2 centimeter part was absolutely unhealthy looking? Yeah, it was absolutely healthy looking, and secondary healing it has good prognosis with secondary healing, etc etc. आपने ये 2 सेकंड में ये बात बोलनी है, वरना इट मीन्स के यू हैव नॉट बीन हैंडलिंग पोस्ट सर्जिकल केसेस। ठीक है ना? तो ये चीज आपकी बिल्कुल गलत होगी। और इवन यू कैन कमेंट कि उसकी तो ड्रेसिंग ही ठीक नहीं हुई थी, इट वाज एन ओपन वुंड एंड इट वाज हर ड्रेसिंग वाज डन इन अ वे कि आपके ख्याल से आप कह सकते हो कि इट हैज गॉट सीरियस फ्लूइड एंड एन अनहेल्दी बेस, आई वुड हैव डन हर ड्रेसिंग इन अ डिफरेंट वे, मे बी विद द सेलाइन सोप कॉजेज इनसाइड और मे बी एनीथिंग एल्स, फलाना ऑक्सीडल ड्रॉप, जो जो आपका प्रोटोकॉल है, यू कैन डेफिनेटली, और यू कैन से दैट आई वुड लाइक टू टेक द कल्चर ऑफ द सीरियस फ्लूइड व्हिच इज कमिंग आउट, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो हम करते हैं वार्डों में। हाउ डू वी ट्रीट इन्फेक्टिव वुंड? वहां पे अगर एक इन्फेक्टिव वुंड आके जो बेचारी 1.5 महीने से लेके 16 साल की लड़की फिर रही है, सो यू आर सो अनएम्पैथेटिक टुवर्ड्स हर दैट यू आर जस्ट सेइंग अनहेल्दी स्कार कह के आपने बात खत्म कर दी। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई ना, तो इस तरह नहीं बोलना, ठीक है? ओके,
सो टू बिगिन विद, इसी तरह कुछ भी आपको एक एक्स्ट्रा चीज नजर आती है पेशेंट की, इफ योर पेशेंट इज सिटिंग देयर विद द आईवी लाइन, आप उसको जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में व्हेन यू टॉकिंग अबाउट दैट शी इज वेल ओरिएंटेड टाइम प्लेस पर्सन सिटिंग कंफर्टेबली विद एन आईवी लाइन इन हर राइट आर्म, आप उससे ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन पूछ सकते हो कि ये आर्म में लगे हुए कितने दिन हो गए। अगर वो कहती है हफ्ता पहले लगे थी, तो यू शुड, यू कैन एडवाइस हर टू गेट इट रिमूव्ड। मतलब दीज आर फ्यू लिटिल थिंग्स जो कि उस मरीज को भी बेनिफिट कर देंगे आपके देखने से, और जो कि आपका पता चलता है कि हाउ यू आर डीलिंग विद द पेशेंट एंड हाउ यू एक्चुअली फील फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना? ठीक है, छोटे छोटे जेस्चर्स हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड है जो कि बहुत जरूरी है एग्जाम में, तो ये आपने जरूर करना है। सो एनीवेज, बाकी तो अदरवाइज चलो हम सारी बात कर लेते हैं। एक चीज जरूर है कि योर स्पीच वाज गुड, आपकी स्पीड बहुत तेज नहीं थी जिसकी वजह से समझ आ रही थी। और एक और अच्छी बात आपकी मैं जरूर बताऊंगी कि आपके ना जो मोनोटोनस आवाज नहीं थी, आप जिस चीज पे एम्फोसाइज करना चाहते थे आप उस पे एम्फोसाइज कर रहे थे, एंड यू हैड लिटिल जेस्चर्स इन योर हिस्ट्री व्हिच आल्सो गिव्स यू एन एडेड पॉइंट, जैसे आपने कहा अनफॉर्चुनेटली शी हैड अ गेप वुंड एटसेट्रा एटसेट्रा, विच शोज कि आपका वहाँ पे दिमाग थोड़ा काम कर रहा है। तो ये एक अच्छा पॉइंट होता है इस तरह की हिस्ट्री इस तरीके से बोलना, कि आप बोल सकते हो कि अनफॉर्चुनेटली शी हैड अ गेप वुंड एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी बातें, या मिस डायग्नोस्ड केस था एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब आप कर सकते हो बात। तो अच्छा, लेकिन थोड़ी सी ऑब्वियसली हिस्ट्री में थ्रू आउट बड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इम्प्रूवमेंट ये कि चलो बायोडाटा तो जो आपने बोला सो बोला आपने, उसके बाद वो मैं हमेशा अपनी क्लास में कहती हूँ, एक तो एड्रेस अपना पूरा बोला करें, बार बार मैं बताती हूँ, बिकॉज एड्रेस आपके पेपर पे ऐसा लिखा होना चाहिए, हॉस्पिटल में भी और अदरवाइज भी, क्लिनिक पे भी और आपके वाइवे में भी, कि यू शुड हैव एन अ मेल एड्रेस ऑफ द पेशेंट रिटन विद यू, ताकि आप उसको अगर मेल पे बायोप्सी रिपोर्ट या आपने उसको फॉलो करना है तो आपके पास वो कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए। तो एड्रेस बायोडेटा में होने का मकसद ये है, सो एग्जाम में भी ये मकसद है, वो आपने जरूर पूरा करना है। अच्छा, देन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ठीक नहीं थी। आपने कहा शी हैड पेन लोअर एब्डोमेन फॉर 1 year, but then you got a bit confused that how should I mention mass abdomen and the gape wound. आपने पेन एब्डोमेन बोला, फिर आपने मैस एब्डोमेन बोला, जिसमें आगे आपने टाइम नहीं बताया। यू मैंने जस्ट मैंने सेड, बताया अल्ट्रासाउंड स्कैन पे उसका मैस एब्डोमेन पिक हुआ 10 months बैक। ये आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में भी बोला था। मैडम प्रेजेंटिंग कंप्लेन में ही बोला है, एचयूपीआई में भी बोला है। ठीक है, अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट दोबारा से बताएं जरा। पेन लोअर एब्डोमेन फ्रॉम द लास्ट 1 year, मैस हम्म, एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड स्कैन डन 10 months बैक, एंड वुंड इन्फेक्शन आफ्टर लेप्रोटमी इट वाज डन 1.5 months ago। ठीक है, चलो अगर आपने इस तरह से कवर किया है तो नॉट बैड, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से बोल देते कि पेन लोअर एब्डोमेन फॉर 1 year एंड शी इज अ पोस्ट ऑप केस, लेप्रोटमी डन 1.5 year बैक फॉर मैस एब्डोमेन डायग्नोस्ड ऑन अल्ट्रासाउंड, तो वो एक जरा सुनने में आसानी हो जाती। वो हुआ ये कि पेन लोअर एब्डोमेन और मैस एब्डोमेन फॉर 10 months रह गया, और फिर गेप वुंड 1.5 month, वो चीज थोड़ी वो हो गई, और फिर एचओपीआई में आके और फिर एग्जामिनेशन पे आके पता चला कि मैथ्स तो था ही नहीं, पर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में बकायदा मैथ्स की बात हो गई। तो मैथ्स को इतनी इंपॉर्टेंस है ना, तो आप पोस्ट ऑपरेटिव केस ऑफ लेप्रोटमी कर दो तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। मैंने इसीलिए प्रेजेंटिंग कंप्लेन में मैस एब्डोमेन और अल्ट्रासाउंड स्कैन मेंशन की है, क्योंकि पेशेंट को वो कोई तो फीलिंग। 10 महीने पहले था ना, अब तो नहीं है। वो मैडम 10 महीने पहले वाला जो मैथ्स था उसकी वो उसी के लिए ट्रीटमेंट मैडम, चलती उसकी रहेगी। उसकी लेप्रोटमी भी उसी लिए ही इसलिए हुई है। कह रही हूँ कि अब वो मैथ्स के साथ नहीं है, अब वो पोस्ट ऑप केस ऑफ लेप्रोटमी है, which was done because of mass which was misdiagnosed on ultrasound probably. तो आप इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ये रखो कि शी हैज ना पेन लोअर एब्डोमेन फॉर 1 year, जो कि सर्जरी से पहले भी थी और अब भी है, बट and she is a post operative case of laparotomy for 1.5 year due to mass abdomen which was diagnosed on ultrasound at that time, and now she is having gape wound since laparotomy, हम्म, right? और अम, इससे ये है कि आपका ना वो सुनने वाले को आसानी हो जाएगी। वैसे आपने भी गलत नहीं इस चीज को प्रेजेंट किया प्रेजेंटिंग कंप्लेन में, आपने भी अच्छी तरीके से बोला, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि जब आप 1 2 3 की बात करो ना, नंबर 1 पे जब आपने पेन बोला और नंबर 2 पे मैथ्स बोला, वो सुनने में एकदम से लगा यूं कि इस वक्त वो बेसिकली पेन और मैथ्स के साथ आई है। हाँ, उसकी 1.5 month बैक लेप्रोटमी हुई थी, नाउ शी इज गॉट गिवन, लेकिन असल में मैथ्स एब्डोमेन तो तब का था ना, तब वो तो लेप्रोटमी से लिंक्ड था। ठीक है, यस मैम। तो इस तरीके से। अच्छा, देन एचओपीआई में पेन, यू स्टार्टेड ऑफ विद पेन विच इज वेरी गुड। अब देखो जो पेन है ना, इसमें जब आप एचओपीआई बोलते हो उसकी एक और की याद रखो, एक टिप है छोटी सी,
history of presenting illness is actually based on your differential diagnosis, जो आपके माइंड में एक रफली बने होते हैं कि दिस कैन बी द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने पेशेंट से सवाल पूछते हो ताकि हिस्ट्री में आप जितना डिफरेंशियल डायग्नोसिस को शॉर्ट लिस्ट कर सको वही बेहतर है। पेन के अंदर हम डीडीज माइंड में क्या रखते हैं, एक तो पेन एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में गायनी की वजह से हो सकती है, वो तो आपने अच्छा रूल आउट कर दिया। बट देन पेन एब्डोमेन इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ गायनी, दो और वजूहात जो हो सकती हैं वो या तो यूरिनरी सिम्टम्स है या फिर बावल सिम्टम्स है। हाँ, अगर ये सब कुछ रूल आउट हो जाता है तो मे बी मस्कुलर और बोनी। तीसरी कोई और वजह नहीं है जो पेन लोअर एब्डोमेन करे, दुनिया में कोई ऐसी और वजह नहीं, या तो वहाँ गट पड़ी हुई है, या वहाँ ब्लैडर पड़ा हुआ है, या वहाँ हमारा गायनी का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अगर ये सब नहीं है तो फिर स्पैज्म होगा। सो दीज आर, और एक आपके पेशेंट में बड़ी ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री थी लेप्रोटमी की, तो आपने ये लिंक जरूर बनाना है कि उसकी ये पेन लोअर एब्डोमेन कहीं पोस्ट ऑपरेटिव या वुंड की पेन तो नहीं है जो वो कैरी कर रही है। ऑब्वियसली नहीं है, बिकॉज आपने कह दिया कि 1 साल से। तो ये स्पेसिफिकली मेंशन करो कि इट इज द सेम पेन विच यू यूज्ड टू हैव डीप इन हर pelvis or maybe in the lower abdomen, which was still there even before laparotomy, and the added discomfort is added because of the wound, ताकि ये सुनने में पता लगे कि आप उस चीज को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पेन तो वो भूल गई है, शायद वो जो भी हो सो हो, तो अब उसको लेप्रोटमी की पेन हो गई है, ठीक है ना। तो ये चीज आपने जरूर रूल आउट करनी है। दूसरी मैम चीज ये मैम लेप्रोटमी पे भी मैडम उसकी जो है वो हाफजाबाद में जो मैंने बाद में प्रोव आउट किया, पेशेंट की जो है वो लेप्रोटमी तो हुई, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसके मैस जो कॉम्प्लेक्स एडिनेक्सल मैस था, मैं आगे आपको बताऊंगी मैडम, वो बायोलेटरल कॉम्प्लेक्स एडिनेक्सल मैस था, और मैडम उन्होंने उसकी बायोप्सी भी इवन नहीं ली और जस्ट उसको ओपन क्लोज कर दिया पेशेंट को, और ऐसे कुछ चलो वो उल्टा। अलग बात है, वो बाद में बात करते हैं। चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं वैसे आपको इन जनरल बता रही हूँ कि आपने पेन की हिस्ट्री कैसे लेनी है। जी वो मैम। सारा कुछ आपने बहुत अच्छा बताया है कि पेन रेडिएटिंग दिस साइड, इट्स नेचर, इट्स कैरेक्टर, इट्स रेडिएशन, इट्स रिलीविंग एग्रीवेटिंग फैक्टर्स। पर जहाँ आपने बात की कि इट इज एग्रीवेटेड विद मेंसेस, बताया नहीं कि आप पीरियड शुरू होने से कितने दिन पहले होके पीरियड शुरू होने पे खत्म हो जाती थी, या पीरियड शुरू होने से शुरू होती थी और बाय द एंड ऑफ द पीरियड ज्यादा हो जाती थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो हमारा टिपिकल डीडी है रिगार्डिंग पीआईडी एंड एंडोमेट्रियोसिस, आपने उसको उसको रिलेट ही नहीं किया विद द डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट था, एंड देन मिड साइकिल पेन। सो यू शुड हैव डन दैट इन अ वे कि अब वो तो एक गायनाकोलॉजिस्ट और गायनी के बारे में, जब आपके सामने इतने सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट बैठे होंगे, वो उनके तो कान तरस रहे हैं सुनने को कि पीरियड्स से क्या रिलेशन। जैसे कि आपने अनहेल्दी वूंड कह के छोड़ दिया, तो ये तो बात हजम करने वाली थी नहीं कि व्हाट डू यू मीन बाय अनहेल्दी वूंड। इसी तरह जब आपने ये कह के छोड़ दिया कि इट्स शी रिलेट्स इट विद हर मेंसेस एज वेल एंड फुल स्टॉप, तो बात तो वही अजीब ही सी रहेगी कि ये गायनाकोलॉजिस्ट हिस्ट्री सुना रही है या एक सर्जन सुना रहे। सो ये फर्क पड़ गया। एंड देन यू हैव टू डिफरेंशिएट द यूरिनरी सिम्टम्स, वो ब्लैडर के सिम्टम्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो सारा कुछ आपने ज़रूर रूल आउट करना होता है, ठीक है। तो आपने वो करना है। उसके अलावा ये कि अच्छा, सो पेन का आपने कर दिया, देन यू डिस्क्राइब्ड अबाउट द लेप्रोटमी। लेप्रोटमी वाली चीज़ आपकी सारी ठीक थी। So you started off with that Hafsabad thing and all that, but it's better to mention as well that she doesn't know the name of the surgeon, etc. She doesn't have, if she has the notes या उसको जो भी उन्होंने बताया about this thing, कि उसका क्या हुआ था, कि इंट्राऑपरेटिव नोट्स क्या थे, etc etc, वो सब कुछ तो उसके अंदर आपने ठीक है चलो आप, बिकॉज शी कुड नॉट टेल एग्जैक्टली कि एडिनेक्सल मैस कैसा था, तो लेकिन जो मुझे आपकी सारी हिस्ट्री है ना, उसके अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने रूल आउट, वैसे मैंने सोचा था इन्वेस्टिगेशंस में जाके आपको वहां पे सवाल करूंगी। ये इसमें आपने टीबी को बहुत ज्यादा एचओपीआई में प्रोब करना है। शी इज अ केस जिसके अंदर डिफरेंशियल में टीबी नंबर 1 पे भी आ सकता है, ठीक है ना भाई। ओपन क्लोज हो क्या है पेशेंट किया, किसी ऑब्वियसली किसी सर्जन नहीं है वो, कोई ऐसा आम सर्जन नहीं है, बल्कि शायद अकलमंद ही सर्जन है कि उसने ओपन करके क्लोज कर दिया। मुझे मुझे तो लगता है कि वो एक गलत सर्जन शायद नहीं है, उसने तो ठीक काम किया। उसको अगर शक हुआ है कि मे बी ट्यूबरकुलोसिस और व्हाटएवर, इट्स बेटर टू क्लोज हर इंस्टेड ऑफ डूइंग सर्जरी ऑन ट्यूबरकुलोस पेशेंट। तो
इसमें आपने टीबी को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई, जो कि पास फेल होने वाली बात थी। क्योंकि टीबी इज वन कंडीशन जिसके अंदर सर्जन में भी बायोप्सी भी नहीं लेता बल्कि हाथ ही नहीं मारता। सो यू शुड हैव, आपने वहीं पे HOPI में इसके फादर की हिस्ट्री से शुरू करना था, ट्यूबरकुलोसिस की, इसकी पूरी टीबी की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी, और फिर प्रूव करना था कि अगर इफ यू रियली थिंक दैट टीबी जो कि आपकी हिस्ट्री में शायद आपके माइंड में नहीं था इसीलिए, तो फिर आप प्रूव करते ना अपनी हिस्ट्री से किसको मेरे इसलिए नहीं है। सो वो नहीं किया। Then about her wound, you did not mention in history of presenting illness about the wound in detail कि अब तक क्या होता रहा 1.5 महीना, बहुत टाइम होता है बेचारी बच्ची का साथ, क्या एंटीबायोटिक्स ली एग्जैक्टली, कितने महीनों का क्या क्या कोर्स IV लगते रहे, ड्रेसिंग कब से हो रही है, कौन करता है घर में ड्रेसिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। और यहाँ पर आकर रिलेशन बनता है जो आपने HOPI बायोडेटा में बोलते हैं कि शी लिव्स इतने डिस्टेंस फ्रॉम द हॉस्पिटल, 45 मिनट्स डिस्टेंस या 15 मिनट्स डिस्टेंस। एक्चुअली दीज आर द कंडीशंस जिसके साथ आप रिलेट दोबारा कर सकते हो कि 15 मिनट्स डिस्टेंस पे तो शी कैन कम डेली फॉर द ड्रेसिंग और शी कैन नॉट कम डेली फॉर द ड्रेसिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देन एग्जामिनेशन। अच्छा, उसके बाद बाकी ठीक था, जो आपने नो वाली बातें की कि आई डोंट नो व्हाई यू स्पेसिफिकली मेंशन्ड अबाउट, ओके फाइन ठीक है आप, बिकॉज मैं तो इसकी और DD भी चाह रही थी, आपने वॉइस होर्सनेस वो आप और ही तरफ चले गए एक्चुअली, ओवेरियन कार्सिनोमा। असल में बात ये होती है, प्रॉब्लम विच वी ऑल नीड टू चेंज, आप सबको ये हो जाओगे विद प्रैक्टिस, कि आपने ना रट्टा नहीं बोलना। मतलब अब आपने देख लिया कि प्रॉबेबली पेशेंट ने कह दिया कि मेरी 1 साल पहले 1.5 महीने पहले सर्जरी हुई लेप्रोटमी फॉर मैस एब्डोमेन, तो आपने माइंड में शायद CA का बना लिया और आपने CA की ही हिस्ट्री ली, उससे आगे दिमाग ही ना गया। सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। आपके लिए पेशेंट ने तो कह दिया कि मेरी मैथ्स था, लेकिन आपको तो नहीं मिला ना इवन ऑन एग्जामिनेशन यू डिड नॉट मेंशन एनी मैथ्स। और आपने सॉरी कौन सा नोट बोला था PA के ऊपर? मैम रेजिडेंट। रेजोनेंट ही था। सो यू डिड नॉट मेंशन एनीथिंग रिगार्डिंग दैट मैथ्स ना। तो फिर आप इसका इतनी लंबी चौड़ी कैसे CA की हिस्ट्री ले सकते हो कि आपने उसकी रेजिडेंट मैडम, मुझे तो मैथ्स पैल्पेट ही नहीं हुआ। नहीं हुआ। सो बात तो वही खत्म हो गई। लेकिन आप चलो ठीक है, बिकॉज उसकी लेप्रोटमी भी होगी या ये वो, आप अगर चाह रहे थे कि या किसी ने उसे स्कैन पे बताया भी हुआ है तो आपने लिया, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और DD निकालना था, जैसे मैंने आपको पेन का बताया एंड द लेप्रोटमी इटसेल्फ, उसकी बहुत लंबी अभी हिस्ट्री बनती है, बिकॉज एक बड़ी कंसर्न वाली बात होती है उसमें आपका पोस्ट ऑपरेटिव स्टे कितना था, उसको कोई ब्लड लगा या नहीं लगा, उसके बाद उसका हॉस्पिटल स्टे कितना था, फिर उसकी वूंड का जो सारा कुछ हुआ, देन व्हाट एग्जैक्टली वाज द रीजन, एवरीबडी इन द वर्ल्ड इवन द पेरिफेरी नोज के बायोप्सी लेनी है या नहीं लेनी है क्या है, तो एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो सारा कुछ एंड देन द TB की हिस्ट्री। अच्छा, एग्जामिनेशन के अंदर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन वाज ऑल राइट, ठीक था। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन अभी जैसे कि आप कह रहे हो कि एज देयर वाज नो मास, तो फिर क्या कर सकते हैं, और ऑब्वियसली बिकॉज लोअर एब्डोमेन उसका आई एम श्योर बहुत टेंडर होगा, उसका उसकी वजह से, स्कार की वजह से, तो पेल्पेशन पे आप वो भी मेंशन कर सकते हो। अच्छा, जब पेल्विक एग्जामिनेशन की बात हुई तो अनमैरिड गर्ल तो है, लेकिन आप उसका एक्सटर्नल फिर भी बात कर सकते हो, या फिर अगर एक्सपोज ही नहीं किया तो आप कह सकते हो कि मैंने इसको एक्सपोज ही नहीं किया बिकॉज आई डिडंट हैव एनी फीमेल अटेंडेंट विद मी एटसेट्रा। चलो वो वहां तक तो ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैरिड होती तो आप क्या बाय मैनुअल पे या उस पे क्या आप देखना चाह रहे थे? हाउ वुड द बाय मैनुअल, हाउ वुड हैव इट हेल्प्ड यू, द बाय मैनुअल एग्जामिनेशन और द पेल्विक एग्जामिनेशन? मुझे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में मैथ्स तो फील नहीं हुआ, लेकिन उससे मुझे भी मैथ्स है उसका 10 मंथ से। तो बाय मैनुअल पे मैडम सबसे पहले जो है वो साइज ऑफ द यूट्रस और मोबाइल यूट्रस है, टेंडर है, और फॉर्नेसिस। अगर मुझे मैथ्स जैसे मैं एडिनेक्सल मैथ्स इसमें एक्सपेक्ट कर रही थी, डिफरेंशियल मैथ्स था, तो मैं फॉर्नेसिस में मैथ्स को देखती कि मुझे मैथ्स पल्पेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और फिर मैडम इसकी लोअर लिमिट रीचेबल है नहीं रीचेबल, ताकि मुझे पता चलता ये ओवेलियन है या जिस तरह मैंने रखा है इसको। ठीक है, गुड, बिल्कुल ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी मिस्ड डूइंग द बाय मैनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, आप इन्वेस्टिगेशंस मांगो इसकी। मैम आई वांट किसी ने कुछ अगर ऐड करना है हिस्ट्री एग्जामिनेशन में तो बता दें। ठीक है, चलें, आप इन्वेस्टिगेशंस मांगो। मैम आई वांट द ब्लड ग्रुप ऑफ द पेशेंट। बी पॉजिटिव।
Ma'am, I want complete blood count with dates, including hemoglobin in grams per deciliter, platelets in cubic millimeter, and total leukocyte in cubic. 9 HP है और TLC इसका 18 है। और क्या आपने मांगा? Madam, platelet in cubic millimeter. नॉर्मल है। Okay. Ma'am, I want her blood sugar fasting with dates. 92। Madam, I want her viral markers in which I want hepatitis antigen and THC नेगेटिव। COVID-19. नेगेटिव, वो भी Uh, नेगेटिव। Madam, I want her complete urine examination in which I want microscopy and biochemistry. 8 to 10 pastilles। And madam, and biochemistry, I want proteins and sugars. नहीं। Madam, I want her treatment ticket. I want to know which antibiotic she is taking. चलो ठीक है, वो दिखा देते हैं। और Madam, I want her laparotomy. The laparotomy which has been done about 1.5 months back. I want the laparotomy notes, गुड। operation notes. और Madam, in specific investigations, I want her acidic fluid report. I want to see. हुई थी साइटिक फ्लूइड हाँ जी मैडम, उसकी एसिडिक फ्लूइड हुई हुई थी और मैडम लेप्रोटमी में? हाँ जी मैडम, एसिडिक फ्लूइड उन्होंने सिर्फ लेके भेज दिया था और मैंने बार बार पूछा कोई टुकड़ा लेके भेजा, कोई बायोप्सी वगैरह, कहती बायोप्सी ठीक इनसे है। सिर्फ दिया था हमें इन्होंने। और मैडम वो भी ठीक है। नेगेटिव की उसमें जील लेंसन उन्होंने करवाया हुआ था और उसमें मैडम वो नेगेटिव था, नेगेटिव था सारा इसका। ठीक है। और उसके अलावा मैडम अल्ट्रासाउंड स्कैन एब्डोमेन पेल्विस। ठीक है। और मैम ट्यूमर मार्कर्स, if I am getting any M rule, then I will proceed for tumor markers, in which I want all tumor markers, CA125, LDH, beta नहीं, HC. अभी तो आप एम रूल पे डिपेंड कर रहे हो ना, तभी से क्यों मांग रहे हो? अगर आएगा एम रूल तो मांगोगे ना, तभी तो मैंने आपको अल्ट्रासाउंड दिया ही नहीं। यस मैम, मैंने यही कहा है कि अगर मुझे एम रूल मिलेगा फिर अल्ट्रासाउंड। ट्यूमर मार्कर्स क्यों बोलना शुरू हो गए हो? ठीक है मैम। ना बोलो ना, मतलब आप क्यों अपना वाइवा गलत तरफ लेके जा रहे हो? आप कहोगे माय फर्दर इन्वेस्टिगेशंस विल डिपेंड ऑन माय अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स, दैट्स इट। अच्छा, और मैडम ट्यूबरक्लोसिस के लिए कोई स्पेसिफिक वर्कअप जैसे पीसीआर फॉर ट्यूबरक्लोसिस और जीन एक्सपर्ट? पीसीआर क्या मतलब? किस चीज का पीसीआर? ट्यूबरक्लोसिस के लिए मैडम डीएनए। किधर से लेंगे? कुछ भी बोल दो, हमारा थोड़ी फील्ड है टीबी। मैम लिम्फ नोड से लेंगे लिम्फ नोड बायोप्सी तो नहीं ना करेंगे। जी। स्पूटम से कह दो बेशक। स्पूटम से। उसका आप कह दो, हाँ कुछ भी कह दो। देखो, ये हमारी एक तो फील्ड नहीं है, बाकी है कि दो चार मोटे मोटे टेस्टों के नाम आने चाहिए टीबी के। बाकी मैडम वो होता क्या है, कैसे करता है, वो तो वैसे ही मेडिसिन वालों का काम है। मैडम अच्छा, मैंने और स्पूटम इसलिए मैंने नहीं बोला क्योंकि पेशेंट ने मुझे कोई हिस्ट्री नहीं काफी दी। नहीं है? तो फिर ब्लड का ले लो, ब्लड से उसका वो वाला टेस्ट करा लो। वो जो मॉन्टोस टेस्ट होता है इम्यूनो एसे वाला, वो टेस्ट करा लो। इसका वो जो स्पॉट टेस्ट होता है टीबी का, वो टेस्ट करा लो। जो अब वैसे ही बड़ा लेस सेंसिटिविटी वाला मेंटोस टेस्ट जो होता है वो करा लो। जैसे और मैडम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये टीबी एक्चुअली के दो चार मोटे मोटे टेस्ट याद कर लो। हाँ, स्पूटम फॉर एएफबी पेशेंट का हुआ हुआ था और हुआ हुआ नेगेटिव। था ना। गुड। तो कितनी सेंसिटिविटी है? वो नेगेटिव है। नेगेटिव डज नॉट मीन शी इज नॉट अ केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। हमें नहीं पता इसका कितनी सेंसिटिविटी है। टीबी कैसे डायग्नोज होता है? 11% तो एसिम्टोमेटिक होते हैं, जो बेचारे सिम्टोमेटिक आ भी जाते हैं, यही तो मसला है, उसका डायग्नोसिस डिफिकल्ट है। इट्स ये जो टीबी सीए ओवरी है, ये तो बड़ी ओवरलैपिंग कंडीशंस है। इसकी अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग सेम होगी, इसकी CA125 की रिपोर्ट सेम होगी, इसकी साइटिक फ्लूइड अगर प्रॉपरली लिया और प्रॉपर हुआ है तो ही पता चलता है। वो एक नो डाउट डायग्नोस्टिक चीज होती है कि उसके अंदर मेलिग्नेंट सेल्स आ जाएं तो वो मेलिग्नेंसी है। अगर मेलिग्नेंट सेल्स नेगेटिव है, एएफपी होता है, एएफपी के साथ भी वो भी नेगेटिव आए तो न्यूट्रोफिल्स और ल्यूकोसाइट काउंट और वो देखा जाता है उसके अंदर, जिसके बाद डायग्नोसिस बनता है टीबी का। और आपने इसके अंदर सीबीसी में मैंने आपको टीएलसी काफी ज्यादा दी है, 18 दी है। यू डिड नॉट आस्क फॉर द डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, and then I gave you less hemoglobin, I gave you UTI, I gave you many other reports जो आपने बिल्कुल साइड पे करते रहे हो, जो कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए साइड पे, ठीक है ना?
तो वहीं से आपने मांगना है, एंड देन बिफोर गोइंग फॉर मैडम द ट्रीटमेंट टिकट इज द लास्ट थिंग यू वुड लाइक टू नो ना। उससे पहले आप देखो आपका सीक्वेंस ऑफ आस्किंग फॉर इन्वेस्टिगेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शोज दैट हाउ यू आर अप्रोचिंग द पेशेंट। आप उसकी मेन इन्वेस्टिगेशन छोड़ के ट्रीटमेंट पे तो हम एंड पे आते हैं ना। ट्रीटमेंट टिकट पहले आपके सामने रखने की, रख के कौन क्या करे, नहीं। यू शुड आस्क, जैसे ही मैंने सीबीसी बोला, आपने आपने कहा सीबीसी, आई सेड 9 एचपी, एचपी कम है वहीं रूल आउट कर लो अनीमिया की कॉज, ठीक है। 16 साल की बच्ची में 9 एचपी है, लेप्रोटमी वो करा के, यू नीड टू फाइंड आउट हर सीरम फेरेटिन, एंड इफ यू रियली थिंक सो देन यू कैन गेट एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस डन एज वेल, और उसके माइक्रोसिटिक हाइपर या आरबीसी नेसेस पेरिफेरल्स में डन। देन आई सेड टीएलसी इज 18, 18 टीएलसी है, रूल आउट करो ना, बाकी क्यों 18 है, 18 मीन्स के उसका ओके फीवर तो नहीं है, बट यू नीड टू रूल इट आउट। यू कैन इवन आस्क फॉर सीआरपी के उसका भी एक महीने पहले लेप्रोटमी हुई हुई है, वो कहीं सेप्टिक तो नहीं अंदर कुछ रह गया है या क्या चीज़ है, या उसकी वजह से कुछ सेप्टिक ना हुई हो, तो यू कैन आस्क इवन फॉर सीआरपी, एंड देन अकॉर्डिंग टू सीआरपी और हर क्लिनिकल पिक्चर यू कैन इवन डिसाइड इफ यू रियली थिंक इफ यू नीड टू गेट द सीरम लैक्टेट डन एज वेल टू रूल आउट द सेप्टिसीमिया। मतलब 18 पे कुछ तो अपनी एंजाइटी शो करो ना, कि 16 साल की बच्ची का 18 टीएलसी लेके वो आपके सामने खड़ी है, तो अब उसका कुछ तो करो, डीएलसी कराओ पहले, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट, बिकॉज योर माइंड शुड बी, it is more than 50% a case of tuberculosis than a case of COV. This should be your approach, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कॉमन थिंग्स हैपन कॉमनली। हमारे मुल्क में 16 साल की बच्ची जिसके फादर को टीबी रह चुके हैं, उसको टीबी होने का ज्यादा चांसेस ये ओवरी होने से, ठीक है। तो उस चीज को कंप्लीटली अपनी हिस्ट्री एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन में रूल आउट करो। और सबसे बड़ी हिंट आपको ये मिल रही है कि एक सर्जरी में हुई है कहीं पे, मे बी अ गायनेकोलॉजिस्ट और अ सर्जन हैज डन इट, and he or she opened the abdomen and closed it without touching any organ। इससे अक्लमंद इंसान कोई नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ कॉम्प्लिकेशन एंडिंग अप इन, टीबी के मरीज में अगर आप सर्जरी कर लो तो वो आपकी लाइफ का एक ब्लंडर है, क्योंकि यू कैन एंड अप इन फिस्टुला फॉर्मेशन। इतना फ्रेजाइल टिश्यू हुआ होता है, आप कहाँ से क्या डैमेज करके निकलते हो आपको भी नहीं पता होता। तो इससे बेहतर है कि वो क्लोज ही हो जाए, ठीक है ना। सो इससे बड़ी क्या आपको हिंट मिलेगी कि लेप्रोटमी हुआ, ओपन एंड क्लोज होके वो आ गई है। सो दिस इज अनदर हिंट फॉर यू। तो आपने इस चीज की जानी छोड़नी, और देन यस ओके फाइन, साइट एटलीस्ट उसने साइटिक फ्लूइड लिया, जो उसने साइटिक फ्लूइड लिया वो उसने कहीं भेजा जस्ट टू रूल आउट कि वो ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। एक ब्लंडर जरूर उसका हुआ था कि लेप्रोटमी से पहले उसको रूल आउट करना चाहिए था, वो उससे बड़ा क्या ब्लंडर, लेकिन अब एक ब्लंडर हो गया तो एटलीस्ट उससे अगला ब्लंडर उसने नहीं किया कि अंदर हाथ नहीं मारे, ठीक है ना। तो चलो ये तो यहाँ पर तो थोड़ी सी माफी बनती है। सो दीज फ्यू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको अपनी हिस्ट्री एग्जामिनेशन में पिक करना है ताकि अपनी इन्वेस्टिगेशन में कम्प्लीटली रूल आउट करो, एंड देन यू प्रोसीड अहेड विद एनीथिंग। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट केस जो आप लेके आए हो वैसे, तो एग्जाम के लिए ये बहुत मुश्किल केस है, और एग्जाम में इस अप्रोच को अपनाना और एग्जामिनर को इस लाइन पे लेके जाना, और जो जिसको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, जिससे टीबी से इतना पड़ा हुआ है, सिर्फ वही लेके जा सकता है और प्रूव कर सकता है, और अगर आप प्रूव कर लो तो क्लियर कट पास हो, ठीक है ना। बिकॉज दिस इज अ डिफिकल्ट केस, बिकॉज मैडम इसकी मुझे सारी हिस्ट्री, हो सकता है ये सी ओवरी ही निकले, बट मैडम इसमें रूल आउट करना बड़ा जरूरी है जी, टर्निंग चेक नहीं हो रही थी मैडम, मैंने 3 दिन लगातार इस पेशेंट के पास जाती रही हूँ। है ना। और बिकॉज इट्स अ कंफ्यूजिंग केस, नो डाउट इट्स, आप इवन अपने वाइवे में भी कह सकते हो व्हाइल मैनेजिंग द पेशेंट और व्हेन यू आर डिस्कसिंग विद एग्जामिनर द डायग्नोसिस, इसमें तो सारा ज्यादा वाइवा ही डायग्नोसिस पे होना है। तो यू कैन डेफिनेटली से बिकॉज टीबी इज वन थिंग जो डायग्नोस भी आराम से नहीं होता। तो इसके अंदर रिसाइटिक फ्लूइड वाज इम्पोर्टेंट, यस। इसके अंदर इसका टीएलसी डीएलसी वाज इम्पोर्टेंट, इसके अंदर आईजीआरए टेस्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर ट्यूबरकुलोसिस, ऑल दीज टेस्ट। और इसमें से कोई भी एक चीज हिंट कराता है टीबी की तरफ तो शी विल बी गिवन, इसकी मैनेजमेंट प्लान ही डिफरेंट है, ये फिर एक मेडिकल मैनेजमेंट का मरीज है। लेकिन अगर मैं इसमें से कोई चीज जैसे साइटिक फ्लूइड में मेलिग्नेंट सेल्स आ जाते हैं, या इसका कोई ट्यूमर मार्कर ज्यादा आ जाता है, ट्यूमर मार्कर्स पे हम बात करेंगे अब आफ्टर अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एंड पेल्विस। ट्यूमर मार्कर अब देखो अनफॉर्चुनेटली सी ओवरी में भी CA125 ज्यादा होता है और टीबी में भी CA125 ज्यादा होता है। सो इट इज नॉट आवर वेरी कंफ्यूजिंग केस। तो वो मैं आपको बताती हूँ आगे क्या इसके ट्यूमर मार्कर्स का क्या करना है और उसको टीबी से कैसे डिफ्रेंशिएट करके लेके जाना है। सो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई है, राइट। मेरा नाउ एक लेट्स क्वेश्चन टॉक अबाउट जी। मैडम, ये जो अगर हम टीओ मैथ सस्पेक्ट करें तो टीओ मैथ में पेन एब्डोमेन होता है?
TO mass में देखो, when you are talking about a mass in the abdomen and pain, it means it's a complicated mass. What are the causes of a complicated mass? Torsion, hemorrhage, infection, ठीक है ना, या रप्चर. तो यस, इफ इट इज एन इन्फेक्टिव मैस तो उसके अंदर TLC भी ज्यादा होगा, उसके अंदर पेन भी ज्यादा होगा, उसके अंदर ये सारा कुछ ज्यादा होगा. या फिर वो टॉर्जन है, व्हाई नॉट टीओ मैस में अगर टॉर्जन, पेन विद मैस मींस इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड मैस. either it's a fibroid or it's an adnexal mass or a tubovarian mass or whatever you're saying. पेन का मतलब है कि कॉम्प्लिकेट हो गया वो मैस. पेन के क्या क्या, पेन की 4 कॉजेज मैंने आपको बता दिए, यही 4 कॉजेज है. एंड इफ अ पेशेंट इज देयर विद पेन एंड अ मैस, देन यू हैव टू रूल आउट दिस 4 थिंग्स इन योर हिस्ट्री कि इसको इन चारों में से कोई एक कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है. ठीक है, यस मैम. तो ये करना है. सो अब अल्ट्रासाउंड. अच्छा, अब देखो, जब मैंने आपसे कहा है कि इफ यू हैव नॉट फाउंड एनी मैस एब्डोमेन, and even if you have found any mass abdomen in your examination but you're not sure it's malignant or not, आपने अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन मांगना है, उसमें अपनी एब्डोमेन, फॉर एग्जांपल इसमें तो एब्डोमेन पेल्विस मांग लिया या सिर्फ अल्ट्रासाउंड पेल्विस मांगना है. आपने उसके आगे कुछ नहीं कहना. आपने कहना माय फर्दर इन्वेस्टिगेशंस विल डिपेंड ऑन माय अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग रिपोर्ट. वो अल्ट्रासाउंड चाहे फाइब्रोइड शो कर दे, अगर वो एडिनेक्सल मैस शो कर रहा है तो वही जिस तरह डॉक्टर आयशा ने बोला, एम रूल और बी रूल. फिर अगर उसमें से उसने एम रूल वाली बातें बताई तो फिर आप बात करोगे ट्यूमर मार्कर्स की. अब इस तरह के केस में जैसे आयशा बता रही थी कि बायलैटरल कॉम्प्लेक्स एडिनेक्सल सिस्ट थी, तो वो तो टीबी में भी होती है, तो उसके अंदर फिर आप ट्यूमर मार्कर्स, यस, बिकॉज इट्स ये एम रूल्स शो करे. ट्यूमर मार्कर्स आयशा में बता रही थी, मैंने वहाँ रोक दिया था, वो सारे ट्यूमर मार्कर्स. अनफॉर्चुनेटली मैंने कहा टीबी में भी CA125 ज़्यादा होगा और सी ओवरी में भी ज़्यादा होगा. वंस यू गेट हायर CA125, देखो अगर हज़ारों में आ रहा है, टीबी में भी आ सकता है जब मैसिव एसाइटिस हो, तो फिर आप इसका CT एब्डोमेन पेल्विस भी करा सकते हो, डेफिनेटली, टू सी द मैथ्स एंड टू फर्दर सी इफ इट्स सी और नॉट. अनफॉर्चुनेटली CT के अंदर भी सी ओवरी और TB की फाइंडिंग्स बहुत मिलती हैं, एक्सेप्ट फॉर द ब्लड सप्लाई में भी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली TB में भी जिस तरह से मेट्स आते हैं, जिस तरह से वो ट्यूबरकुलोमास आपको जगह जगह पड़े हुए मिलते हैं, उस तरह से आपको सी ओवरी में भी मिलते हैं. तो then your cytic fluid report and your IgRA test and your TLC DLC report, that then indicates if it's a case of tuberculosis. और अगर वो TB प्रूव हो जाता है तो आप इस मरीज को चाहे मेडिसिन में ही शिफ्ट करा दोगे. It is then going to be a case of medicine people, because she will be given ATT for 9 months और वो बिल्कुल ठीक भी हो सकती है. सो ATT मिलेगा, उसका साइटिक फ्लूइड भी खत्म हो जाएगा, उसके एडिनेक्सल मैसेज भी खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आप डेफिनेटली देख सकते हो क्या करना है. ठीक है, अगर आप आईवे में इसको प्रूव कर देते हो कि TB का केस है, तो आप उसको अगर ये भी मैनेजमेंट में कह दो कि इसको ATT तो ये मिलेगी, थोड़ी बहुत ATT भी पता होनी चाहिए, बट शी विल बी शिफ्टेड टू द मेडिकल वार्ड. बहुत ही अच्छा वाइवा होगा ये आपका. ठीक है ना. तो ये इसका डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर अगर ट्यूमर मार्कर्स आपको डेफिनेटली अदर देन CA125 ज़्यादा मिल रहे हैं तो फिर तो आसान हो गया कि शी 16 ईयर्स ओल्ड, इसमें जाहिर बात है आपको बल्कि ज़्यादा दूसरे वाले ट्यूमर मार्कर ज़्यादा मिलने के ज़्यादा चांस है. फिर वाइवा और हो जाएगा, फिर उसके अंदर आपका मैनेजमेंट वही जो सी ओवरी का मैनेजमेंट होता है. ठीक है. सो ये बड़ा अच्छा केस आयशा लेके आई, क्योंकि ये इस तरह का केस अगर एग्जाम में आ जाए तो इट इज़ वेरी वेरी कंफ्यूजिंग. इसमें यू नीड टू नो एग्जैक्टली हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्यूबरकुलोसिस एंड सी ओवरी. यस मैम. ठीक है. नॉट ओनली इन एग्जाम, आपको असल लाइफ में भी, जैसे कि देखो वो जो हफ्जाबाद का डॉक्टर था, कितना वो कंफ्यूजन स्टेट में आ गया होगा जब उसने सर्जरी में खोला होगा और उसे लगा होगा ये तो TB है. और लेकिन उसने उस वक्त तक तो ब्लंडर किया, ये चीज प्री ऑपरेटिवली असेस होने वाली है, थिएटर के अंदर ले जाके पेशेंट को ओपन करके असेस होने वाली नहीं है. इट वाज अ मिस्टेक. लेकिन इससे ज्यादा अक्लमंदी की कोई बात ही नहीं कि उस मिस्टेक को एक्सेप्ट करे और वहीं बंद कर दे. इंस्टेड के TB वाले टिश्यूज को छेड़ा छाड़ी करके 16 साल की बच्ची को फिस्टुला पे एंड अप करके उसकी सारी जिंदगी परेशान, या फिर उसका अंदर खुदा ना खास्ता गट ओपन, जो क्योंकि TB की सर्जरी में आपको पता भी नहीं चलता वेयर कि आप कहाँ इंजरी कर रहे हो गट की. वी ऑल हैव सीन सच पेशेंट्स एंड सच टिश्यूज. जो TB वाले टिश्यूज आर सो फ्रेजाइल कि आप उसको जरा सा भी रिट्रैक्ट भी कर रहे हो तो दे गेट डैमेज्ड.
और आपको पता नहीं होता इफ यू कीप द कट ओपन एंड यू क्लोज द एब्डोमेन, तो सेप्सिस की वजह से पेशेंट की मोर्टेलिटी कितनी हो जाती है। तो चलो एटलीस्ट इतनी अक्लमंदी उसने की कि उसने सिर्फ लिया एसाइटिक फ्लूइड और उसने वहीं एब्डोमेन बंद कर दिया, इतनी इतना तो किया उसने। लेकिन ये जरूर है कि ओपन होने से पहले एवेल्युएशन हो तो बेहतर है। लेकिन अगर आप किसी इस तरह की, देखो हर एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग, अगर आप इस तरह के मसले में फंसी गए हो तो उसको वहीं एक्सेप्ट करके और वर्स नहीं करना चाहिए पेशेंट के लिए, राइट। सो इवन इन एग्जाम अगर आपके एंड अप होते हो किसी ऐसी सिचुएशन में, बट यू एक्सेप्ट दैट सिचुएशन एंड यू नो एग्जैक्टली कि उससे अगला स्टेप पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या करना है, तो भी आप पास हो सकते हो। बिकॉज हर कोई, एवरीबडी इज ह्यूमन बीइंग। कई दफ़ा इवन आपको रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन इनकाउंटर हो जाती है कि पेशेंट, यंग पेशेंट आपने ओपन की, एंड अप के उसकी शायद मेलिग्नेंट लुकिंग मैस है, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में इट वाज नॉट मेलिग्नेंट लुकिंग, बट अब तो उसकी कोई ऐसी सर्जरी होनी चाहिए, तो यू कैन टेक बायोप्सी एंड क्लोज हर, एंड इफ द बायोप्सी रिपोर्ट कम्स आउट टू बी मेलिग्नेंट, तो यू कैन ऑलवेज टेक हर बैक 1 वीक और 10 days आफ्टरवर्ड्स, और उसकी कंप्लीट क्लियरेंस सर्जरी कर सकते हैं। यू नो, यू, ये नहीं है कि आप वही, आपने उस सिचुएशन से अब अगला स्टेप टैकल करना है। हर कोई किसी भी अजीब सिचुएशन पे एंड अप हो सकता है, बिकॉज एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग। हर इन्वेस्टिगेशन जो है वो 100% नहीं एक डायग्नोसिस पे हमें लाके कभी हो ही जाता है लाइफ में कि नहीं खड़ा करती, बट वी नीड टू एक्सेप्ट दैट मिस्टेक एंड वी शुड नो एग्जैक्टली द नेक्स्ट स्टेप इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट कि उसका ठीक। सो आई थिंक दैट एंड दिस, योर आपकी अप्रोच भी अगर अपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन और आपके मैनेजमेंट में उस इसी तरह लेके इस पेशेंट को होती, बिकॉज इसकी हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा फैक्टर वो लेप्रोटमी है जो 1.5 महीने पहले हुआ है। यू नो, ओनली अ 16-year-old गर्ल हैज कम विद अ लेप्रोटमी 1.5 month बैक, एक एब्डोमेन खोल के वो बच्ची आई हुई है, इससे बड़ा और क्या होगा उसके लिए। तो उस चीज को कि और वो उसका आंसर भी लेने आई है आपसे कि व्हाट वाज दैट हैड हैपेंड टू हर। तो वो सारी चीज को पिक करके लेके चलना, और वो ये दिस वाज डिफिकल्ट केस, लेकिन ये या पास या फेल वाला केस है कि हाउ आर यू अप्रोचिंग द पेशेंट। इसमें डायग्नोसिस तक पहुंचना और उसको आगे लेके चलना, और अपने माइंड को एक फोकस में नहीं रखना, ये आपने, इसीलिए तो कहते हैं एग्जाम में कभी डायग्नोसिस नहीं पूछ के जाना मरीज का। आपने उस मरीज को खुद देख के, खुद असेस करके एक ब्रॉड ब्रॉड विजन से लेके चलना है, और फिर आपने उसका डीडी बनाना है और उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन देखनी है, और मैनेजमेंट से पहले आपको भी पता और एग्जामिनर को भी पता हो कि केस क्या है। दैट्स इट। फिर इंशाल्लाह यू कैन इजीली पास। ठीक है, कोई क्वेश्चन? ये एक बड़ा अच्छा केस आज लेके आई हैं आयशा। मैम एक सवाल मुझे पूछना है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। मैम। मैंने एक केस देखा था मैम कि वो ओवेरियन सीए का केस था। 2 साल पहले उसे कीमोथेरेपी हुई थी। उन्होंने उसका यूट्रस छोड़ दिया था, बाकी 2 ओवरीज निकाल दी थी। यूट्रस उन्होंने ठीक है। इसलिए छोड़ा था कि एडहेयर था वो ब्लैडर से। तो ये बात उस वक्त तो पता थी ही नहीं। अब ये 2 साल पहले, जब 2 साल के बाद, ये कीमोथेरेपी के बाद ये आई है पेशेंट किरण हॉस्पिटल में, तो उन्होंने रेफर किया इसको टर्शरी केयर हॉस्पिटल में बिकॉज ऑफ द लोअर एब्डोमिनल पेन ना। तो मैंने तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जब उसका किया तो मुझे यूट्रस जो था वो 14 वीक साइज मिला, और बिल्कुल वो लिप्रोटमी का जो स्कार था उस पे वो उससे और यूट्रस के साथ अटैचमेंट थी। इमोबाइल यूट्रस था, और यूट्रस के लेफ्ट साइड पे टेनिस लाइक बॉल मुझे पर एब्डोमिनली फील हुई। अच्छा, मैंने अपनी एग्जामिनेशन फाइंडिंग लिख ली। जब मैंने फाइल खोल के देखी तो उन्होंने इस चीज को कंसिडर ही नहीं किया हुआ था, उन्होंने सॉफ्ट एब्डोमेन लिखा हुआ था। तो मैं पूछना ये चाह रही थी कि 2 साल के बाद अगर एडहेशन इस तरह प्रेजेंट करते हैं पोस्ट लिप्रोटमी मतलब, तो उसको क्या हम एब्डोमिनली सॉफ्ट कहेंगे क्या? क्योंकि वो तो साफ साफ फील हो रहा था पूरा पूरा। देखो, वो जो आपको मैस फील हो रहा है, इट कैन नेवर बी बिकॉज ऑफ द एडिशन। एक तो यूट्रस तो थी 14 वीक साइज, फिर आपको जो उसके साथ ग्लोबुलर मैस फील हो रहा है, इट मे बी रिकरेंस और इट मे बी सम मेट्स प्रेजेंट। अव्वल तो मैंने यही सीओपी के डीडी बनाई केस थी में। मैम। मैंने यही डीडी बनाई थी, और जब मैंने गुड। उसकी फाइल आखिर में सब मैनेजमेंट वगैरह मैंने सब लिख ली ना अपने पास, फिर जब मैंने फाइल खोल के उसकी देखी है तो उसका सीटी स्कैन में भी उससे कोई रिकरेंस नहीं लिखा हुआ था। बस पोस्ट ऑपरेटिव एडिशंस करके उन्होंने लिखी हुई थी बस। और फिर तो उसका वो नहीं डीबल्किंग होगा, सर्जरी देखो। दोबारा हुई है।
ठीक है। द थिंग इज के अव्वल तो जो फर्स्ट टाइम सर्जरी हुई उसमें क्लियरेंस सर्जरी हो जानी चाहिए थी। वो क्यों क्लियरेंस सर्जरी नहीं हो सकी? क्योंकि उसके अंदर देखो, जब ऑन्कोलॉजी का केस होता है ना, उसके अंदर क्यों पूरी टीम एक लिखी हुई है गाइडलाइंस के अंदर, वो शुड बी देयर during surgery. It's oncological surgeon etc, you know, the senior most etc, ताकि इस किस्म की जो एडिशंस है, ना सिर्फ के एडिशंस बल्कि कोई ब्लैडर की सरफेस से बायोप्सी, इधर उधर की बायोप्सी या लिम्फ नोड्स को देखना एक्सेट्रा, वो सारा कुछ हर स्किल का बंदा वहां प्रेजेंट हो तो वो हो। ये ज्यादती है कि मरीज की यूट्रस रह गई और ओवरीज निकल गई, ये कैसी सर्जरी हुई? आई डोंट नो। यूट्रस हैज टू बी रिमूव्ड। ऐसी कोई यूट्रस दुनिया में नहीं जो मैम ब्लैडर के अभी भी साथ मैंने ऐसे उसको लगी हो। फॉलो अप किया है, तो उन्होंने अभी भी यूट्रस का पार्ट छोड़ दिया है, वो अडहेयर है। डीबल्किंग सर्जरी उसकी हुई है, मैं फॉलो अप किया था उस पेशेंट को ना दैट्स जाके। अनदर इशू। चलो, अच्छा, बहरहाल इसीलिए मैम फिर एडजुवेंट इसको अगर ऐसे कीमोथेरेपी का एग्जाम रोल में, होता है। मैम सॉरी मैम, अगर हम्म। ऐसा पेशेंट एग्जाम में आ जाए तो हम तो अपनी फाइंडिंग ही बताएंगे ना एग्जामिनर को। हाँ हाँ, आप तो अपनी वो देखो, बात यह है कि वाइवा आपका उस फाइल पे नहीं है, वाइवा पेशेंट के ऊपर है। अब देखो, बहुत सारी चीजें होती है। इवन आपने वहां पर फाइल, पता नहीं, आप अपने जब वार्डो में जाते हो, यू डोंट इवन नीड टू लुक इनटू द फाइल। आपने ना किसी और की एग्जामिनेशन को देखने की जरूरत है, ना किसी और की मैनेजमेंट। आप लोग ग्रुप्स में आपस में खुद डिस्कस किया करो गाइडलाइंस और उसके मुताबिक मैनेजमेंट। नो डाउट मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक हो रही होती है वार्ड्स में। और मैं तो हमेशा यही कहती हूँ एग्जाम में कि जहाँ पास हो, ये सोचो कि अगर ये पेशेंट आपके वार्ड में होता और कैसे मैनेज होता, तो वो बोल दो। द थिंग इज के किस सिनेरियो में, किस कंडीशंस पे क्या वो मैनेजमेंट लिखी हुई है, यू डोंट नो। एट टाइम्स फाइल पे लिखा होता है इसको ब्लड लगे हुए हैं, अनीमिया ये है, बट यू डोंट नो उस डिपार्टमेंट में उस के हिसाब से उस पेशेंट को लगना चाहिए था ब्लड। मे बी बिकॉज शी कैन नेवर कम बैक, मे बी इट्स, पता नहीं इस मरीज ने क्या बात बताई है। लेकिन इफ यू थिंक कि इस वक्त ब्लड के बजाय आयरन भी लग सकता था, तो यू नीड टू टेक योर ओन डिसीजन। वहां पर यही तो बात है। सबसे पहले एग्जामिनर कई दफा आपसे ये पूछते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, वट एवर इज हैपनिंग विद हर इन द डिपार्टमेंट जहाँ वेर एवर शी इज एडमिटेड, व्हाट डू यू थिंक, मैनेजमेंट इज गोइंग राइट और यू वुड लाइक टू डू सम अदर मैनेजमेंट? Yes, you can say that. I think that maybe I could not have given her blood. Maybe I should not have done this. Maybe at the very first place, if she had come to me, I would have involved a urologist must be standing with me, so that I should have removed her uterus completely. के bladder भी अगर इंजर हो रहा है, bladder का part साथ remove हो रहा है, लेकिन complete removal हो रहा है pelvic organs का, तो bladder repair या bladder की reconstruction के लोग मेरे पास मौजूद हैं, because the clearance is important. बिकॉज मिलिग्नेंसी, तो फिर मिलिग्नेंसी है ना, उसकी क्लियरेंस सर्जरी इतनी अनहोनी बात नहीं है। सो हाँ, ये कई दफ़ा होता है कि अगर इतना एडवांस्ड केस है तो एडजुवेंट कीमोथेरेपी का यही तो रोल है कि व्हेनेवर यू गिव एडजुवेंट कीमोथेरेपी, तो एटलीस्ट वो गट और इधर उधर से ठीक होके इतनी अच्छी एनाटॉमी हो जाती है कि आप क्लियरेंस सर्जरी बड़े आराम से कर सकते हो। ब्लैडर के साथ गट का फिर भी समझ में आता है कि चलो आप गट इंजरी करके वो, लेकिन ब्लैडर एडहेरेंस की वजह से यूट्रस छोड़ देना है ना, सीए का पेशेंट में इज टोटली अनएक्सेप्टेबल, टोटली अनएक्सेप्टेबल। यू कैन इन्वॉल्व अ यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट कैन मैनेज इट इन एनी वेज, इन अ वे कि वो ब्लैडर का पार्ट भी काट के उसकी रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं ब्लैडर की। देर आर 100 ways of वो कंडुई और पता नहीं क्या क्या, बोरीज फ्लैप और आई डोंट नो, वो जो इनकी टर्म्स है, they create so many other things, but it's impossible, it's unbelievable कि यूट्रस छोड़ दी जाए। सो ये चीज़ें आपके क्लियर होनी चाहिए। और इवन अगर आप जब पेशेंट से डिस्कस करते हो प्री ऑपरेटिव, व्हाई डू वी गेट सीटी डन इन अ पेशेंट ऑफ सी ओवरी? सीटी इसलिए कराया जाता है सो दैट वी कैन सी द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज। वी शुड नो एग्जैक्टली कि उसका मेलिग्नेंसी कहाँ कहाँ तक गई भी है। इवन आफ्टर कीमो, अगर वो एडजुवेंट कीमोथेरेपी से पहले के बाद आई है हमारे पास फॉर सर्जरी, इवन बिफोर सर्जरी आई वुड लाइक टू गेट अ सीटी डन टू नो एग्जैक्टली द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज, ताकि मैं प्री ऑपरेटिवली खुद भी तैयार हो सकूं और पेशेंट के अटेंडेंट्स को भी मैं काउंसलिंग से तैयार कर सकूं कि मेरी सर्जरी की एक्सटेंट क्या होगी। आई विल काउंसल देम एग्जैक्टली कि अगर इसके मेट्स गए हैं तो इसका हो सकता है शी कैन एंड अप इन कोलोस्टमी, हो सकता है इसका मुझे कोई गट का ट्रैक का कुछ करना पड़े, हो सकता है इसके मुझे ब्लैडर रिपेयर से फलाना फ्लैप या वो करवाना पड़े एक्सेट्रा। बट इफ आई एम टेकिंग पेशेंट फॉर सर्जरी देन आई हैव टू गेट माई जॉब डन। इट डज नॉट मीन कि मैं सब टोटल कर दूँ इन सीए का पेशेंट। सो ये चीज़ फिर गलत है ना, ठीक है। जो चीज़ गलत है वहाँ पे यू नीड टू एक्सेप्ट इट कि मैं होती तो, बट अगेन यू नेवर नो उधर के सर्कमस्टेंसेस में उन्होंने किस वक्त क्या मैनेज किया। जैसे कि मैंने बताया कि एक पढ़ा लिखा बंदा
whoever's done MBBS and who is capable of doing surgery, obviously उसने सारे license लेके who is capable of doing surgery, जैसे भी डॉक्टर आयशा ने केस बताया आपसे बात का, that person was obviously sensible enough, कोई भी जानबूझ के थिएटर में ले जाके मरीज के साथ गलत नहीं करेगा, राइट? सो बेस्ट इंटरेस्ट पेशेंट में उस वक्त किस सिचुएशन में उन लोगों ने जो डिसाइड किया, probably that was right, but your own concept should be clear that if you're taking a patient of CA to operation theatre, you should know exactly the extent of surgery you are about to do, तो उसकी preparation accordingly होनी चाहिए, ठीक है? So थैंक यू मैम। ये प्री ऑपरेटिव असेसमेंट का मकसद होता है, ठीक है? और बताएं। सो आज बेसिकली हमने अलग से मैनेजमेंट और सी ओवरी की लेप्रोटमी या वो के बजाय वी बेसिकली डिस्कस्ड मोर अबाउट द डिफरेंशियल ऑफ दिस केस। बहुत ही अच्छा केस आयशा लाइन थी, और तो एग्जैक्टली और किस तरह अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड, ऑल दीज थिंग्स वी नो। एक्चुअली मुझे पता है बहुत ही अच्छी थ्योरी आप सबको पता है, थोड़ा सा टीबी और भी पढ़ लो, टीबी हम लोगों ने कम ही पढ़ा होता है, उसमें कुछ भी नहीं, 2-4 मोटे मोटे टेस्टों के नाम याद रख लो, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए, और यस वो चीज़ मैंने थोड़ा सा आपको बता दी है कि आपने डायग्नोसिस पे कैसे पहुंचना है। मैडम मैं अगर इनकी डिफरेंशियल बताऊं मैडम आपको, मैंने किसने सेट किए थे हाँ डिफरेंशियल? मैडम मेरा पहला डिफरेंशियल था ट्यूबोवेरियन मास, हाँ, सेकंड डिफरेंशियल था मैडम ओवेरियन और एडिनेक्सियल पैथोलॉजी, कुड बी बेनाइन और मैलिग्नेंट। ट्यूबोवेरियन मास क्या टर्म है? दिस इज नो टर्म। व्हाट डू यू मीन बाय ट्यूबोवेरियन मास? ये तो कोई टर्म ही नहीं है, ओवेरियन मास है ना, तो व्हाट डू यू मीन बाय ओवेरियन मास? इज इट, आर यू टॉकिंग अबाउट मैलिग्नेंट ओवेरियन मास, यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट मास? ट्यूबोवेरियन क्या होता है, इसको एलैबोरेट करके बोलो ना। एलैबोरेट करके बोलूं ट्यूबोवेरियन को? क्या कहना चाह रहे हो? ट्यूबोवेरियन का बिनाइन और मैलिग्नेंट और नॉट ओवेरियन मास है ना, व्हाट डू यू मीन ट्यूबोवेरियन? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। देखो पीए पे आपको मैस मिला नहीं, पीए पे आपको रेजोनेंट नोट मिला है, पेन एब्डोमेन के साथ पेशेंट आई है, तो फिर किस चीज का मैस आप बोल रहे हो नंबर 1 डीडी पे? मैडम अगला हिस्ट्री डीडी बताओ, 2 बताओ। दूसरा मैडम ओवेरियन और एडिनेक्सियल पैथोलॉजी कुड बी बेनाइन और मैलिग्नेंट। तो फिर ट्यूबोवेरियन क्या है? मैडम टीबी के लिए बोला है। तो फिर पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस बोलो। पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस, ठीक ठीक है। ठीक है ना? नंबर 1 पे अगर आप बोल रहे हो तो यस पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस बोल दो, नंबर 2 पे आप एडिनेक्सियल या ओवेरियन मास बोल दो व्हिच कैन सॉरी बिनाइन और मैलिग्नेंट। फिर नंबर 3 एंडोमेट्रियोमा, ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा। अच्छा, तो वो जब आपने ओवेरियन मास बोला तो उसमें एंडोमेट्रियोमा भी आ जाएगा ना? ओके, एंडोमेट्रियोमा कोई अलग चीज तो नहीं है ना, वो तो ओवेरियन ही है। ठीक है। हम्म, मैडम बिनाइन जो ओवरी के बिनाइन ट्यूमर्स है उसमें तो वो मेरा मतलब उसको मैंने अलग से बता दी कि एंडोमेट्रियोसिस के उसमें, देखो इसलिए अलग से अलग बोला है। से तब बोलना है जब नंबर 1 पे आप बोलना चाहते हो, एक मरीज आपको प्रेजेंट ही किया, आपको एग्जैक्ट डिस्मेनोरिया का आपने पैटर्न एक्सप्लेन किया, और साथ आपने फॉर एग्जांपल उसको सब फर्टिलिटी है एंड यू नो इट्स एंडोमेट्रियोसिस, आप कह सकते हो नंबर 1 डायग्नोसिस एंडोमेट्रियोसिस, नंबर 2 डायग्नोसिस एनी अदर ओवेरियन मास मे बी बिनाइन और मैलिग्नेंट। जब ऐसी बात है ही नहीं और आपने ओवेरियन मास बोलना है जिसमें एंडोमेट्रियोसिस की इतनी इंपॉर्टेंस आ ही नहीं रही है, इसकी वजह यह है कि एक तो यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म योर पेल्विक एग्जामिनेशन बिकॉज शी इज अनमैरिड, एब्डोमेन पे आपको कुछ मिला नहीं है, तो मतलब फिर अलग से एंडोमेट्रियोसिस बोल देना, और डिस्मेनोरिया मेंसेस के साथ तो आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया कैसा था, लेकिन फिर अलग से इसको ऐसे बोल देना कोई बात नहीं बनी। ठीक है मैम। ठीक है ना? तो वो नहीं करना। एंड देन इन लेप्रोटमी प्रीवियसली देयर वाज सम एसाइटिक फ्लूइड व्हिच वाज सेंट, एंडोमेट्रियोसिस का कोई ताल्लुक नहीं बनता एसाइटिस से, ठीक है ठीक है तो अलग से उसको बोलना काफी थोड़ा डिफरेंट सी बात है इस केस में। ठीक है। मैम फिर इस ठीक है, पेशेंट में 6 to 9 months की हम एटीटी देंगे ना पहले? 9 मंथ्स की tuberculosis एटीटी बनती है ना, बिल्कुल। जी। वो जो सारा न्यू केस प्रोटोकॉल है इसका, ट्यूबरकुलोसिस के भी 2-3 प्रोटोकॉल्स हैं, वो भी जरूर देख लेना। एक न्यू केस है, एक रिकरेंस है, एक है नॉन कंप्लायंट के लेके छोड़ दी और अब दोबारा प्रेजेंट किया, तो ये 3 डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, ये देख लेना, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये वाले थोड़े थोड़े मोटे मोटे आने चाहिए, बहुत ज्यादा इसलिए भी नहीं बिकॉज ये हमारी फील्ड ही नहीं है, हमने इसको आगे मतलब इट्स बेटर इफ दिस patient is shifted to a medical ward
देयर शी इज गिवन एटीटी, और हम इसको गेप वुंड और पोस्ट ऑपरेटिव केस के लिए साथ साथ विजिट करते रहेंगे। और आफ्टर शी इज डन विद हर एटीटी, फिर हम इसका स्कैन्स करा के देन वी कैन डेफिनेटली रिव्यू हर रिगार्डिंग हर पेल्विक कंडीशन एंड शी विल बी ट्रीटेड। शी इज एन अनमैरिड केस और दैट्स इट। ठीक है ना? मैडम इनका जो वुंड इन्फेक्टेड है उसका पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस से रिलेशन बनता है ना? वो भी बनता है, वैसे उसका सीए से भी बनता है। मैम इनके सारे ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल थे, सिर्फ CA 125 रेज था। कितना? 72। तो ये तो है टीबी का केस। सब ट्यूमर मार्कर्स मैडम नॉर्मल, और मैडम इनके सारे जो पेल्विक और पैरायोटिक लिम्फ नोड्स थे वो सब पैल्पेबल, मतलब सीटी स्कैन पे पॉजिटिव थे। उन्होंने सबका तो साइज। ठीक है, तो वही ना। तो इसमें तो अगर आप इसके मैनेजमेंट में कह ही दो कि इस तरह मैं काउंसिल करूंगी, इसका ये ज्यादा है और ये हो गया, तो मैं काउंसिल करूंगी कि शी इज अ केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, और साथ ही कह दो कि मैं मेडिसिन वालों को तो इन्वॉल्व किया हुआ है, आई वुड रादर लाइक टू कीप हर, अगर एडमिटेड ही रहना है इसने तो शी शुड बी इन द मेडिसिन वार्ड, मेडिकल वार्ड, नॉट इन द गायनी वार्ड। और ऐसे ही होता है हमारे डिपार्टमेंट में, सबके डिपार्टमेंट में ऐसे ही होता है। अच्छा मैडम, अब इस पेशेंट का ना स्पूटम फॉर AF भी हुआ था सिर्फ, अगर मुझसे एग्जामिनर कि हाँ, आप। वार्ड वाले लेके जा रहे हैं उसको, देखो टीबी की इन्वेस्टिगेशंस की हुई है उन्होंने। ठीक है। हम्म, अच्छा ठीक है, मैडम, चलिए। अब अगर लास्ट क्वेश्चन मैडम, मैडम जी। टीबी नहीं निकलती सपोज अगर मैडम, और ये ओवेरियन एडिनेक्सल मैस ही निकलता है और कॉम्प्लेक्स एडिनेक्सल मैस है, और मैडम इसमें 2 सेंटीमीटर का सिस्टिक, 2 सेंटीमीटर का सॉलिड एरिया भी दिया हुआ था, तो मैडम हम आता सपोज। है, टीबी में भी आता है इसी तरह। अच्छा। टीबी में भी आता है सॉलिड एरिया, सेप्टी, कॉम्प्लेक्स ओवेरियन मैस, एसाइटीज। और इसमें तो खैर शायद उस तरह से ध्यान ही, बिकॉज आपको रेजिडेंट नोट मिला, लेकिन अच्छे खासे मैसिव एसाइटीज के साथ पेशेंट प्रेजेंट किया होता है, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट। लेकिन नेवर फॉरगेट, हर एक को टीबी ना बना देना, लेकिन नेवर फॉरगेट टू कीप दिस ट्यूबरकुलोसिस वाला डीडी इन योर माइंड एज वेल। और अगर आपको लगता है टीबी वाला चाह रहा है हिस्ट्री, या जैसे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में आ गए, या फिर उसके ट्यूमर मार्कर्स इस तरह के एम्बिगुअस से दे दिए एग्जामिनर ने, तो देयर इज नो हार्म कि आप 2 टेस्ट टीबी के भी बोल दो। और मैडम टीबी के पेशेंट्स में जो DLC रेज होता है उसमें लिम्फोसाइट्स आते हैं ना ज्यादातर। हम्म, ठीक है। साइटिक फ्लूइड में भी इसी तरह होता है। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी चीजें देख लेना। इसमें ESR भी मैडम मुझे मांगना चाहिए था। हाँ हाँ, ये सर, और बिकॉज टीएलसी इतना हाई दे दिया, जिस तरह की वो पेशेंट ऊपर से सर्जरी करा दे रहे हो, नो हार्म, आप सीआरपी भी मांग लेते हैं, और अगर फीवर और जी। सेप्टिक लुकती तो लैक्टेट भी मांग सकते हो। मैडम चेस्ट एक्सरे भी होना चाहिए फिर तो इसका। हाँ बिल्कुल, गुड। चेस्ट एक्सरे मांगोगे, यस, गुड फायजा। थैंक यू ठीक है, मैडम। चलो, मोस्ट वेलकम। ओके, गुड लक, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मुलाकात होती है वेडनेसडे को। मैम मैम इसमें मैम जो सीक्वेंस ऑफ मैम एक इन्वेस्टिगेशंस सवाल होंगी। पूछ लूं? जी सॉरी फायजा जी, आप भी पूछो और मैम डॉक्टर पूछो। एक एक्स्ट्रा सवाल है थायराइड से हम्म रिलेटेड बस मेरा। हम्म मैम हम्म मैं आज पढ़ी थी तो मैं थायराइड इन प्रेगनेंसी में मैंने पढ़ा है कि एक जगह लिखा हुआ है कि 30% रेस करना चाहिए आपको डोज में थायरोक्सिन, लीवोथायरोक्सिन की, और एक जगह हाई रिस्क में लिखा हुआ है कि आप रूटीनली इंक्रीज ना करें डोज। तो मैम सही बात क्या है? ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो मेरी बात सुनो, जो थायरोक्सिन का है ना, वैसे इसकी तो वो भी है मेरा ख्याल है, टॉग आर्टिकल है या गाइडलाइन है, ये देख लेना। It definitely depends on the thyroid function test, and normally we do not increase the dose. However, the way the patient takes the thyroxine medicine is also important. ये पूरा, अगर if you have a case of thyroid disease in pregnancy, तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा, उसमें बहुत कुछ कवर भी हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है केस भी रख लें, लेकिन normally we do not increase the dose of thyroxine if thyroid थैंक यू वेरी function मच tests मैम, are going थैंक यू normal. वेरी मच मैम। वेलकम जी। आयशा ने कुछ पूछना है? नहीं मैम, थैंक मैम यू मैंने सो। इसमें सीक्वेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस जिस तरह हम हाँ पूछेंगे, तो इसमें हमने डीएलसी पूछ लिया, एनीमिया तो टीबी की तरफ ही जा रहा है, दूसरा हाँ, ईएसआर लेंगे, और ठीक है, मैम इसमें सीआरपी हम भी पूछ लो। सीआरपी हो गया, चेस्ट एक्सरे कराएंगे और क्वांटिफिरोन करा लें, आइग्रा। हाँ और बिल्कुल, गुड, ये और आपने इसके अच्छा अलावा, टेस्ट का नाम बोला। हाँ जी, और मैम बाकी हमें, क्योंकि अनमैरिड है, तो हम इसमें जेनिटल टीबी और तरीके से, तो वो जैसा हम वो करते हैं बायोप्सी लेके, वो तो नहीं कर सकेंगे। तो कौन सी बाकी ये टेस्ट बात? का, मैम वो जो प्री मेंस्ट्रुअल बायोप्सी लेते हैं एंडोमेट्रियम की। ना लो, वो मैरिड में भी ना मैम ये लो। तो अनमैरिड में भी ना लें? नहीं नहीं, वो कहाँ डायग्नोज का होता है। प्री मेंस्ट्रुअल ब्लड की का सैंपल टीबी के लिए बिल्कुल टेस्ट ट्यूब में नहीं आता, उसको प्लीज ना बोलो। ठीक है।
उससे बेहतर ये आपने जो क्वांटिफिकेशन वाला टेस्ट बोल दिया आइक्रा, वही काफी है, उसकी इतनी अच्छी सेंसिटिविटी है। मैम प्री जीन मेंस्ट्रुअल एक्सपर्ट के ब्लड बारे में बता दें कि लाइक वो काफी कौन एक्सपेंसिव सा? टेस्ट है, जीन एक्सपर्ट। नहीं, बस आइग्रा के बाद और कोई कराने की जरूरत नहीं है। टीबी के तो वैसे ही बेचारे इतने पुअर पेशेंट्स होते हैं। लेकिन मैम जो जेनिटल टीबी है वो तो फिर लाइक जैसे अगर वो मैरिड पेशेंट है फिर तो वो एंडोमेट्रियल बायोप्सी वगैरह पे ही नहीं रूल आउट होती। लाइक नहीं, क्वांटिफेरोन हमें लोकेशन तो नहीं उससे बताएगा। अच्छी सेंसिटिविटी एंडोमेट्रियल बायोप्सी या प्री मेंस्ट्रुअल ब्लड की नहीं है। एंडोमेट्रियल बायोप्सी तो बिल्कुल टीबी के लिए नहीं करनी, ये इंटरवेंशन बिल्कुल इंडिकेटेड नहीं है कि टीबी डायग्नोस करने के लिए आप उसका पिपेल या कुछ ऐसी चीज करो, नंबर 1। नंबर 2 ये कि प्री मेंस्ट्रुअल ब्लड लेके करना, उसकी बहुत ही कम सेंसिटिविटी है। उससे बेहतर तो उसका वो स्पॉट है, वो जो मेंटूस टेस्ट है वो कर लो सेंसिटिविटी वाला, उसकी भी 50% ही है। प्री मेंस्ट्रुअल ब्लड आपको कहीं लिस्ट में नहीं मिलेगी टीबी के डायग्नोसिस में। ठीक है। तो बस मैम ये आइग्रा बुक्स में टेस्ट ऐसे आप लिखा लिया, होता और है कि इस आप वो वैसे भी लें और साइटिस है तो साइटिक ना नहीं लेना। कभी आज तक लिया वार्ड में, मुझे बताओ, कभी जिंदगी में कभी टीबी डायग्नोस करने के लिए एंडोमेट्रियल एक्सेप्ट के वॉशरमैन के साथ आई हो? नहीं लिया। कभी नहीं हमने किया, नहीं होता वार्डों में, जो होता है वो बिल्कुल ठीक होता है। बिल्कुल, ये किसी ने आइग्रा का लिखा है थैंक यू वही मैम। ठीक है, वो उसकी 97% सेंसिटिविटी है उस टेस्ट की, आइग्रा की। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट जजाकल्लाह वेलकम। जजाकल्लाह। वेलकम। हाफिज। हाफिज मैम। हाफिज।